Okay students, welcome back. In the previous video we started with reaction of acids with metal oxides. बराबर, metal oxide reacts with acids to form salt and water. First example we saw calcium oxide plus hydrochloric acid reacts to give calcium chloride CaCl2 plus H2O. Okay, the next example is magnesium chloride MgCl. Okay, it is magnesium chloride nahi, sorry, this is not magnesium chloride, this is magnesium oxide. Okay, magnesium oxide, that is metal oxide, MgO, metal oxide, magnesium oxide reacts with hydrochloric acid to give you MgCl2. magnesium valency 2 है, chlorine का 1 है, so require 2 radicals of chlorine to match with magnesium and form a stable compound. बराबर, since we require two radicals of chlorine over here, HCl has only one. That is why 2 molecules of HCl will be involved in this particular reaction, and it will give you, again read, MgO, magnesium oxide plus 2HCl, that is hydrochloric acid, reacts to give you magnesium chloride MgCl2 plus H2O, water. ओके, इस तरीके से रीड करने का है रिएक्शन वाइल राइटिंग. यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी रिएक्शन 5 टाइम्स सो दैट इट इज फिट्स इनटू योर ब्रेन एंड यू विल नेवर फॉरगेट दैट. ओके, कन्फ्यूजन अभी नेक्स्ट इसमें से चालू होने वाला है. द थर्ड एग्जाम्पल इज जिंक ऑक्साइड. ओके, जिंक इज अ मेटल एंड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस 2HCl. ओके, रिएक्ट्स टू गिव यू जिंक क्लोराइड. अगेन द सेम थिंग, क्लोरीन आइटम 2 है, इसका वैलेंसी 2 है, बट it's not important to explain this each and every level. Okay, first time पे explain कर दिया, second time में explain किया, third time you can understand. Zinc oxide plus 2HCl will give you zinc chloride ZnCl2 plus H2O, that is water. Okay, we are having only 3 examples of metal oxides reaction with acid. Okay, you can get a question in your exam, explain the reaction of acids with metal oxide, give suitable examples. At that time you have to write this explanation: metal oxides or metals of oxides react with acids to give salt and water. It is a kind of neutralization reaction only. Okay, and examples you have to mention this 1 2 3. Okay, 3 मार्क के लिए आएगा तो 2 एग्जाम्पल डालना. अगर 4 मार्क के लिए आया तो you have to write all the 3 examples. Okay, 1 mark will be for the explanation and 3 marks will be for 3 chemical equations accordingly. ये नहीं बोलना सर आंसर मैंने करेक्ट लिख के आया था, एक एक्सप्लेनेशन देने का और एक एग्जाम्पल दोगे. यू विल गेट ओनली 2 मार्क्स. इवन इफ योर आंसर इज राइट, टीचर विल गिव यू ओनली 2 out of 4. ओके, अगर 3 मार्क के लिए आया तो यू हैव टू गिव 1 mark. यू विल गेट फॉर योर डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज़ द रिएक्शन इज ऑल अबाउट. ओके, आई विल गिव यू द थियरी पार्ट, फोटोग्राफ्स भेजूंगा मैं. Okay, so you can write it down in your tuition book and study accordingly. One reaction carries 1 mark, so if there is a 4 mark question, you have to give the explanation as well as 3 example. Okay, all the 3 examples have already been given. I will not repeat it because हम लोग को ये 30 minutes के वीडियो के अंदर we have to cover entire all the reactions. Okay, we have seen reaction of acids with metal and acids with non-metal. Now we are going to see reaction of base with non-metals. Okay, bases don't react with metal. Why? Because metal का nature already basic होता है. So bases normally do not react with metals. They react with metal oxides. Okay, now let's assume metal oxide क्या है. Carbon dioxide is also metal oxide. Yes, carbon is a form of metal. Non-metal, sorry, carbon is not metal. Okay, so this is non-metal. We are dealing with non-metal oxide. So carbon dioxide, when you run carbon dioxide gas in NaOH solution, that is sodium hydroxide, you get sodium carbonate plus H2O. Okay, sodium hydroxide solution, that is your soap, common soap जो हमारे घर में रखा है ना, साबण. ओके, ते साबण आणि कार्बन डायऑक्साईड ते तुमच्यामध्येच आहे. इफ यू वॉन्ट टू डू दिस रिएक्शन एंड सी, ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज, थम्सअप पीने वाला स्ट्रॉ आता है, हाँ, टेक अ स्ट्रॉ
एका ग्लासमध्ये साबणाचं पाणी करा आणि त्याच्यामध्ये आपण थम्सअपमध्ये बुडबुड करायचो ना लहान असताना, तसं बुडबुडी काढत चला, फुंकत जा त्या सोल्युशनमध्ये. स्लोली अँड स्टडीली यू विल सी दॅट सम पार्टिकल्स, ओके, मिठासारखे पार्टिकल्स खाली डिपॉझिट व्हायला सुरू झाले. दॅट इज सोडियम कार्बोनेट. ओके, सोडियम कार्बोनेट, बिकॉज युअर carbon dioxide that you are releasing from your body is reacting with sodium hydroxide to give you sodium carbonate and water. So you will see that साबणाचा पाणी क्लिअर होत चालला आहे आणि साबण खाली बसत चालला आहे, बट तो साबण नसतो, तो ॲक्च्युली सोडियम कार्बोनेट आहे. सोडियम कार्बोनेट खाली बसला बिकॉज इट इज सॉल्ट प्रेसिपिटेटेड. इट इज heavier than water. It will deposit in the bottom of the glass and H2O you will see that the color is clearing up. पाणी साफ होत चाललं आहे. समजलं? ओके. द रिॲक्शन गोज लाईक दिस. कार्बन डायऑक्साईड रिॲक्ट्स विथ 2 molecules of sodium hydroxide, 2NaOH gives Na2CO3, sodium carbonate plus water. Okay, now the next example we take it as again carbon dioxide with KOH, potassium hydroxide. ओके, ये तो आपको लैब में मिलेगा, टीचर से मांगना, टीचर देगी नहीं, घर पे ले जाने को तो कोई नहीं देगा, एक्सपेंसिव रहता है ये सब. Okay, carbon dioxide, similarly if you do it you will see that potassium, carbon dioxide when you pass through potassium hydroxide, CO2 plus 2KOH, that is potassium hydroxide, gives potassium carbonate and H2O. Okay, now we have sodium oxide. Sodium oxide is SO2. Again this is a form of gas only. Okay, अभी ये फूकने से नहीं निकलेगा तो ट्राई भी नहीं करना. ओके, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगेन अपना सेम पहला वाला बेस आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव यू सोडियम सल्फेट. सोडियम रेडिली कंबाइंस विथ SO2 गैस टू फॉर्म सोडियम सल्फेट. ओके, SO4 हो जाता है इधर. सो ईयर ऑक्सीजन, ओके, 4 ऑक्सीजन, इधर ऑलरेडी 2 है, इधर ऑलरेडी 2 है, तो ये ऑक्सीजन इधर आ गया, बाकी बचा हाइड्रोजन. ओके, ये थोड़ा अनबैलेंस्ड है बट तुम्हारा टेक्स्ट बुक में यही दिया हुआ है. ओके, सो प्रेजेंटली दे आर आस्किंग ओनली फॉर केमिकल इक्वेशन, नॉट बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सो लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल ऑफ दैट. बैलेंस करने जाऊंगा तो और डोका दुखेगा तुम लोगों का. ओके, दे हैव गिवन यू 5 एग्जाम्पल्स इन योर टेक्स्ट बुक. I'll just show you. Confusion. Now I'll just tell you कि बच्चा लोग, अगर तुम लोग ये सब केमिकल रिएक्शन देख देख के कंफ्यूज हो रहा है, ओके, तो कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है. पेंसिल तो गिर गया, पेन कहाँ है? चलो ठीक है, पेन इधर है. ओके, कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्या है, कितना भी हाईली एजुकेटेड पीपल रहेगा, दिस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ऑलवेज गिव अ कन्फ्यूजन टू देम. ओके, इवन द ऑथर ऑफ दिस टेक्स्ट बुक is confused, and while explaining us the reaction of bases with oxides of non-metals, okay, or non-metals, they have used, ये fill in the blank वाला सिस्टम था तो छोड़ दो इसको, हम लोगों ने करके दिखाया है बराबर. इवन दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड थिंग. नहीं, बैलेंस्ड ही है. यहाँ पर SO2 का SO3 है. ओके, चलो ठीक है, मेरा मिस्टेक हुआ है, समझ में आ गया. थोड़ा कंफ्यूज मैं भी हूँ, जैसे टेक्स्ट बुक का ऑथर कंफ्यूज है. ओके, वो मेरे से ज़्यादा कंफ्यूज है. आई प्रूव यू हाउ इट इज़. ही गेव यू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल प्लस बेस. ओके, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल एंड बेस, एंड ही गेव यू रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बोल सकता है इसको. ओके, SO3A, सल्फर ऑक्साइड ही बोलो. ओके, देन ही ऑल्सो गेव यू एग्जाम्पल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव यू सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट एंड वाटर. Okay, similarly aluminum oxide reacts with sodium hydroxide to form sodium aluminate. Sodium plus aluminium
okay, sodium 1 radical, aluminium 1 radical and oxygen 2 radical, okay, and water. This is sodium aluminate, to form sodium aluminate and water. ये केमिकल फार्मूला लर्न कर लेना. व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर सोडियम जिंकेट, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर सोडियम एल्यूमिनेट. टीचर्स ऐसा 1 मार्क का क्वेश्चन डालते हैं एग्जाम में. सो यू हैव टू लर्न दिस टू केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट. ओके, बट व्हाई आई एम सेइंग द ऑथर इज कंफ्यूज, बिकॉज zinc oxide we are studying basis reaction with non metal oxide, oxides of non metal. Is it a non metal? zinc metal है कि non metal है? zinc तो metal है. So this is oxide of metal and not of oxide of non metal. बराबर. Aluminium is also a metal. So how can we include this as an example for reaction of bases with oxides of non metal? बराबर है. कितना हैवी मिस्टेक है, मेटल और नॉन मेटल में कंफ्यूज हुआ. मैं तो खाली वैलेंसी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, 3 को 2 लिख दिया था. ओके, मेरा तो बहुत छोटा माइनर कंफ्यूजन था, लेकिन ये मेटल और नॉन मेटल का कंफ्यूजन. ओके, आई एम अ नॉर्मल ट्यूशन टीचर, बट पर्सन हु इज़ राइटिंग अ बुक इज सपोज टू बी वेरी हाईली क्वालिफाइड विद अ PhD डिग्री और समथिंग लाइक दैट. बराबर, मिनिमम उतना रिक्वायरमेंट रहता है. BSc MSc करने के बाद PhD किया रहेगा, तभी जाके टेक्स्ट बुक्स लिख रहा है वो गवर्नमेंट के लिए. ओके, अगर वो कंफ्यूज हो रहा है, तो इफ़ यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद द केमिकल रिएक्शंस, सो डोंट थिंक दैट यू डोंट हैव ब्रेन्स और यू आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस. शुरू में फर्स्ट टाइम में किसी को नहीं समझ में आएगा. व्हेन यू विल राइट डाउन द इक्वेशन 5 10 टाइम्स तो ही दिमाग में जाएगा. 5 टाइम्स तो आपको लिखना ही है. अगर 5 टाइम्स लिखने के बाद इक्वेशन दिमाग में चला गया, केमिकल इक्वेशन, तो वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, आप इंटेलिजेंट हो, और यू कैन से सुपर इंटेलिजेंट हो अगर 5 टाइम्स लिखने में चला गया. तो अगर 5 टाइम्स लिखने के बाद इसको विदाउट लुकिंग यू ट्राई टू राइट इट अगेन, इफ़ यू आर एबल टू राइट इट देन यू आर वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट. और अगर नहीं लिख पाया तो अगेन फिर इसको 5 to 10 टाइम्स लिखो एंड ट्राई टू स्टडी. तभी ये लिखने से याद होएगा, लर्न करने से याद नहीं होगा. ओके, यू नो अल्टरनेट फॉर दिस. जितना भी केमिकल इक्वेशंस बता रहा हूँ, मैं डायरी के पेजेस का फोटो भेजूंगा. ईच एंड एवरी इक्वेशन यू हैव टू राइट इट 5 टाइम्स मिनिमम. अगर नहीं लर्न हुआ तो 10 टाइम्स करो, बिकॉज अगर लर्न नहीं हुआ तो टेस्ट के अंदर अंडा ही मिलने वाला है. ओके, सो दिस वॉज ओनली टू प्रूव दैट इवन द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक इज गेटिंग कन्फ्यूज बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल. मेटल ऑक्साइड्स को उसने नॉन मेटल ऑक्साइड बोल दिया है. ओके, विच इज़ रॉन्ग. सो व्हेन यू आर राइटिंग, एंड तुम लोग को 4 मार्क के लिए भी आएगा, तो गिव ओनली these three reactions. ओके, केमिकल इक्वेशंस. डोंट गो फॉर जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. उन लोगों ने दिया ही नहीं है तो तुमको आएगा भी नहीं. लेकिन खैर चलो, अगर नहीं भी है, आई विल शो यू हाउ द रिएक्शन वर्क. मैंने तुम लोगों के लिए वर्कआउट करके रखा हूँ, बट दैट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड. इट्स ओनली फॉर योर नॉलेज. दैट रिएक्शन इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल फॉर reaction of bases with oxides of non metal. Okay, because it is metal oxide and base. अगर metal oxide और base का अगर टीचर ने पूछ लिया, जो कि तुम्हारे इसमें है नहीं, लेकिन अगर पूछा तो ये दोनों रिएक्शन आपको लिखना है वहाँ पर. ओके, केमिकल इक्वेशन नहीं दिया हुआ है. केमिकल इक्वेशन आई विल गिव यू. चलो, हियर इट इज. या मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड given in this category is wrong because they are metal oxides and not non-metal oxide नहीं है. How will the reaction goes through? Zinc oxide plus 2NaOH will give you Na2ZnO2, that is sodium zincate plus water. Okay, now aluminium oxide is Al2O3. Okay, Al2O3. Al2O3 plus again sodium hydroxide, that is 2NaOH. These two are the reactions of base with metal oxides and not non-metal oxide. Non-metal oxide के लिए ये 3 है, and metal oxides के लिए we are having base with metal oxide. Acid का तो अपने पास already available है. Base with metal oxide, these two are the reactions. ये study करके रखना. Okay, since this reaction is a little डिफ़िकल्ट, माइट बी पॉसिबल एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाले रिएक्शन के लिए, केमिकल इक्वेशन के लिए
they might give you 2 marks also. Okay, Al2O3 plus 2NaOH will give you. ओके इधर मेरा गलत हुआ, फिर गलत हुआ, फिर वापस से सॉल्व किया, फिर भी मैच नहीं हो रहा था, रेडिकल्स वर नॉट मैचिंग, फाइनली मैच हुआ. सो हम लोग ये थर्ड टाइम तुम्हारे लिए करके दिखाया मैंने. ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू 2 सोडियम एल्यूमिनेट. ओके, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, सोडियम सिंगल रेडिकल, एल्यूमिनियम सिंगल रेडिकल, ऑक्सीजन 2 रेडिकल्स. ओके, कंबाइन टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट. सोडियम जिनकेट था, सोडियम एल्यूमिनेट है, प्लस 2H2O. दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन. इट इज़ नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, नॉट गिवन इन योर गाइड, नॉट गिवन एनीवेयर. ओके, अपना स्कूल के ज़माने में सिंसियरली पढ़ाई किया था मैंने, तो केमिकल इक्वेशंस अभी कर सकता हूँ. जो टेक्स्ट बुक में गाइड में नहीं भी दिया हुआ है वो कर सकता हूँ. ओके, तो सिमिलरली तुमको भी ऐसे ही पढ़ना है बच्चा लोग. ओके, समझ में आया? स्क्रीनशॉट देने का ज़रूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू. अगेन आई एम रिपीटिंग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू 2 NaAlO2 दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट प्लस 2H2O वाटर. ओके, चलो, द लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट. बराबर, हम लोग ने मेटल नॉन मेटल देखा है, अभी कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स देख रहे हैं. फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज फर्स्ट एग्जांपल? मोस्ट कॉमन इज कैल्शियम कार्बोनेट. हम लोग हमेशा सुनते ही ये नाम. ओके, कॉमन केमिकल है कैल्शियम कार्बोनेट. CaCO3 प्लस 2HCl विल गिव यू व्हाट? कैल्शियम विल कंबाइन विथ क्लोरीन. सबसे पहले कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, 2 क्लोरीन लगेगा, इसीलिए हम लोग ने 2 मॉलिक्यूल लिया है इधर. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल कंबाइन विथ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम carbonate in a reaction. The chemical has to be used in a proportion of 1:2 मोल टाइप में. ओके, 1 मोल is to 2 मोल के अंदर इसका प्रोपोर्शन रहेगा. सो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl विल गिव यू कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2 प्लस H2O. बराबर, Ca combines with chlorine to form CaCl2 प्लस H2O. एक ऑक्सीजन चला गया, फिर एक कार्बन बचा है, 2 ऑक्सीजन बचा है. व्हाट डू यू मीन? CO2 विच इज़ अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड. बराबर, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज. आई हैव पुट एन अप एरो की, यू कैन राइट स्मॉल ब्रैकेट डाल के G लिखना है. ओके, वो तुमको फोटोग्राफ में आ जाएगा. सेकेंड ऑप्शन इज, सेकेंड एग्जाम्पल, सॉरी नॉट ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, बिकॉज दिस इज नॉट NaCO3 रहता था तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता था, सोडियम कार्बोनेट होता था, बट NaCO2 रहता तो सोडियम कार्बोनेट होता था. वो भी इतना इजी नहीं है, Na2CO2 ऐसा करके कुछ आता है उसका. हम लोग वो पढ़ेंगे 10th में पढ़ेंगे, अभी नहीं. आई डोंट रिमेंबर. ओके, एग्ज़ाम तुम्हारा है, मेरा नहीं. मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूँ, मेरे को जो जो करना था एजुकेशन अपने लाइफ में कर चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत भूलता हूँ तो ठीक है, चलेगा. वैसे आप कोई भी क्लासेस में जाओ या कोई भी ट्यूशन्स वगैरह में चले जाओ, वो लोग वही एग्जांपल्स बताएंगे जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है. इतना सीरियसली और इतना डिटेली एक्सप्लेन करने का कोई कोशिश नहीं करेगा. सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, दिस इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट. लर्न कर लो. सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विथ HCl टू गिव यू NaCl. ओके, सबसे पहले सोडियम है और क्लोरीन है. ये जिधर भी आएगा ये लोग पहले एक दूसरे से रिएक्ट करके दे विल फॉर्म कॉमन सॉल्ट. Okay, NaCl. Then we have hydrogen and carbonate. Okay, then we have hydrogen and carbonate. So hydrogen and oxygen है, H2O combine हो जाएगा. We got H2O. Okay, 2 H चाहिए था अपने को, एक इधर है सोडियम बाइकार्बोनेट से मिला, दूसरा हाइड्रोजन रेडिकल किधर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिला. सो H2O हो गया, O एक निकल गया, H2O. ऑक्सीजन एक रेडिकल निकल गया टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. बचा कितना है? कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन बचा है. सो दैट इज कमिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द reactants. Okay, carbon dioxide released in air. You will read it as sodium bicarbonate NaHCO3 reacts with HCl hydrochloric acid to give you NaCl sodium chloride plus
H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, ये यहाँ तक ही है। तुम लोग यू हैव स्टडिंग 5 काइंड ऑफ रिएक्शंस। पहला क्या किया था हम लोगों ने, रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन का हम लोगों ने बेसिक रिएक्शन देखा। फिर न्यूट्रलाइजेशन के अंदर वी सॉ डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन वाज एसिड विथ मेटल्स, एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स। देन वी सॉ बेसेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड एंड बेसेस विथ मेटल ऑक्साइड। बराबर, बेसेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड 3 एग्जाम्पल, बेसेस विथ मेटल ऑक्साइड्स 2 एग्जाम्पल्स। ओके, इसको अवॉइड कर दो एंड टेक दिस वन एज द फाइनल। ओके, दिस इज द फैक्ट। ये सब भूल जाओ, ये मेरा वर्किंग था। फाइनल सोल्यूशन यही है। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये याद रखो, फोटोग्राफ के अंदर मेरा साउंड नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर ये याद रखो। इसका फोटो आया तो एक्चुअली कौन सा लेना है सोचते मत बैठो। जो लास्ट में दिया है दिस इज फाइनल, सो दिस इक्वेशन यू हैव टू राइट 5 टाइम्स, नॉट द एंटायर थिंग। ओके, एंड लास्टली वी टुक reaction of acids with carbonate. The same thing, everything will be repeated in your 10th. All these 5 kind of reactions will be repeated in your 10th. इसके साथ में एक 6th वाला और ऐड अप हो जाएगा, reaction of acids with sulfate and disulfate. ओके, सल्फेट एंड डाइसल्फेट, इधर कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट किया, उधर सल्फेट एंड डाइसल्फेट भी ऐड होएगा। ओके, फिर यू विल ऑल्सो हैव सल्फेट एंड डाइसल्फेट रिएक्शन विद बेसेस। तो ये और एक्सटेंसिवली 10th में और बढ़ के आने वाला है। इधर बाय हार्ट कर लोगे तो 10th में सर दर्द नहीं होगा। एंड बिलीव मी बच्चा लोग, ये जितना बड़ा तुम्हारा टेक्स्ट बुक दिख रहा है ना, ये ओनली 1 टेक्स्ट बुक है। इन योर 10th स्टैंडर्ड यू विल गेट 2 टेक्स्ट बुक्स। इतना ही साइज़ का 2 टेक्स्ट बुक मिलेगा। दैट इज साइंस 1 एंड साइंस 2। यानी पोर्शन समझ लो कितना रहने वाला है 10th के अंदर। वो टाइम वी डोंट हैव द, अपने पास 10th के अंदर टाइम नहीं रहेगा टू डू ऑल दिस केमिकल रिएक्शन और इसको दिमाग में डालने के लिए। तो अभी तुमको क्या करना है, अभी ये वीडियोस आ गया है, आज तुमको 2 वीडियोस दे रहा हूँ सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के लिए। ओके, यू हैव टू राइट दिस केमिकल रिएक्शन, अंडरस्टैंड दिस। वीडियो 2-2 बार देखो, 3-3 बार देखो और उसके बाद लिखना शुरू करो। ओके, उससे पहले मत लिखो। कोई इतना ज़्यादा स्कॉलर नहीं है कि विदाउट एक्सप्लेनेशन केमिकल इक्वेशन समझ लेगा। ओके, सो व्हाट वी हैव फिनिश्ड, वी हैव रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस हम लोग ने देखा था। वी सॉ रिएक्शन बिटवीन, सेकेंड वाला क्या देखा हम लोग ने, एसिड बेसिस, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। ओके, देन वी सॉ रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, जिसके अंदर उन लोगों ने थोड़ा गलती भी किया था। ओके, सो ये 2 रिएक्शन अलग हेडिंग में जाएगा, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ये अलग रहेगा और उसमें ये 2 एक्सप्लेनेशन आएगा। बराबर, देन वी हैव द 5th वन, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल। ये भी हम लोगों ने किया है। 10th में सल्फेट एंड बाइसल्फेट भी आने वाला है। ओके, नाउ आफ्टर सीइंग ऑल दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, वन थिंग इज क्लियर इन योर माइंड, दैट एसिड्स रिएक्ट विथ बेसेस टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डज दैट मीन द न्यूट्रलाइजेशन हुआ है तो द सॉल्ट विच इज ऑब्टेन्ड इज न्यूट्रल इन नेचर? इज इट दैट द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इज न्यूट्रल इन नेचर? नो, बट इवन द सॉल्ट विच इज ऑब्टेन्ड, ओके, द सॉल्ट जो अपने को रिएक्शन में वी गेट द एज अ रिएक्टेंट, इवन दो सॉल्ट आर आइदर एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। ओके, अभी ये कैसा है, इन लोगों ने पीएच लेवल के ऊपर एक्सप्लेन करके थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगर ये पढ़ के तुम देखोगे तो इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। रादर मेरा जो डेफिनेशन अभी जो वर्ड्स मैं बोलने वाला हूँ, फोकस ऑन दिस वर्ड्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, द सॉल्ट्स आर सपोज टू बी न्यूट्रल, बट इफ द रिएक्शन इज बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, द रिजल्टेंट सॉल्ट, ओके, रिजल्टेंट सॉस नहीं, सॉल्ट। बेटा नहीं चाहिए मेरे को सॉस। ओके, मेरा बच्चा है ना, मेरे को सॉस दे रहा है, टोमेटो सॉस दे रहा है, इधर कुछ स्नैक्स दिया है उसने, उसके साथ सॉस दे रहा है, तो मेरे मुंह से सॉस निकल गया, सॉरी। ओके, इफ़ द रिएक्शन इज बिटवीन, लेट्स स्टार्ट अगेन, द टाइप ऑफ सॉल्ट इज considered or is assumed to be neutral, but in many cases it is not neutral. Why? Let's do the case study. If there is a reaction between a strong acid and a weak base, तो क्या होगा,
रिजल्ट जो सॉल्ट बन रहा है, दैट सॉल्ट विल हैव मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन्स इन इट, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी एसिडिक इन नेचर. ओके, if the reaction is between a weak acid and a strong base is also known as alkali. So I can also say that if the reaction is between a weak acid and an alkali, then the resultant salt obtained will be basic in nature. क्यों? Because उसके अंदर OH माइनस ये रेडिकल ज़्यादा रहेगा. Okay, and if there is a reaction between strong acid and strong base with equal strength, okay, यानी टक्कर का मुकाबला रहेगा, तो सॉल्ट जो रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा. ओके, वेदर माई दिस एक्सप्लेनेशन इज ओके फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्ट, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. अगर ये तुमको मेरा एक्सप्लेनेशन से नहीं समझा है तो 2 बार ये पैराग्राफ रीड करके देख लेना. ओके, एंड हाउ टू नो वेदर दे आर एसिडिक, जो सॉल्ट आया है एसिडिक है, बेसिक या न्यूट्रल है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिएक्शन इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल विथ वाटर, तो थोड़ा बहुत गीला ही रहेगा. वो जो भी सॉल्ट अवेलेबल है इट इज़ ऑलवेज वेट. ओके, उसका ऑलवेज वेट है, तो उसका पीएच अगर उनको मालूम करना है तो यू विल यूज़ द यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड उसको टच करके देख लेना, या सॉल्ट को यूनिवर्सल इंडिकेटर पे ड्रॉप करके देखना, कलर आएगा, मैच कर लेना पीएच स्केल से. यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो वेदर इट इज़ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल विथ एग्जैक्ट पीएच लेवल. ओके, आई अगेन रिपीट, पीएच लेवल जो है अगर 7 से कम रहेगा, 7 मीन्स न्यूट्रल. ओके, इफ इट इज़ लेस देन 7 देन द गिवन पाउडर, सॉल्ट, solution, whatever it may be, or the given chemical I can say. Okay, the given chemical, if the pH is less than 7 it is acidic, and if the pH is more than 7 then it is basic. बराबर. One more thing you also have to remember is that अभी ये okay, this particular table there's some reactions given over here. Okay, you won't be able to solve this reaction but you have to do it as a homework. When you will be able to solve it, जितना मैंने रिएक्शन तुमको सिखाया है वो रिएक्शन तुम लोग 5 टाइम्स लिखोगे, वो याद हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली फिल इन द ब्लैंक, यू कैन सॉल्व इट. दिस इज़ द टेस्ट एंड होमवर्क फॉर यू. डोंट कॉपी फ्रॉम गाइड, इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो. अगर खुद सॉल्व कर लेते हो तो समझ लो तुम 10th पास करने वाले हो, वरना तुम्हारा 10th में क्या हो जाएगा, राम भरोसे हिंदू होटल. ओके, ऐसा ही कोई होटल ढूंढ के वेटर का जॉब ढूंढना पड़ेगा उधर. 10th पास नहीं करेगा तो कोई वेटर का जॉब भी नहीं देता आजकल, ये भी समझ लो. ओके, सो स्टडी हार्ड बेटा, हार्ड वर्क से दूसरा कोई अपने पास अल्टरनेट नहीं है. एंड 9th में मैं तुमको इतना डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज मुझको मालूम है जो बच्चा मेरे पास 9th में पढ़ा है वो 10th में ऑटोमेटिकली मेरे पास ही रहेगा. सो इन 10th हमारे को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम रहेगा भी नहीं. पोर्शन डबल हो चुका रहेगा 9th से, एंड टाइम हम लोगों को कितना मिलेगा, 2/3 मिलेगा, बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम राइट अप टू मार्च तक हम लोग को पोर्शन कवर करने के लिए नहीं है. इन 10th आई स्टार्ट माई क्लासेस फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स. ओके, अप्रैल में तुम्हारा एग्जाम्स ख़त्म हो गया, May 1 से मेरा 10th का क्लासेस चालू हो जाता है. 1 May ऑनवर्ड्स मैं 10th का क्लासेस चालू कर दूंगा एंड वील फिनिश द एंटायर पोर्शन बाय December. जो बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है उसको अलग से क्लासेस करने के बाद अलग से टेस्ट सीरीज़ लगाने का ज़रूरत नहीं है टू गेट देमसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर SSC बोर्ड एग्ज़ाम्स. वैसा नहीं है. ओके, SSC बोर्ड का 101 सैम्पल पेपर्स है मेरे पास बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड. 101 क्वेश्चन पेपर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. ओके, सो हम लोग दिसंबर में ख़त्म करके Jan, Feb एंड March until your exam starts, we will be having internal board exam type of test in our tuition classes itself, which will make you 100% ready for your board exams. Okay, so ये मेरा स्टडी पैटर्न रहेगा. दिस वीडियो इज़ ऑलमोस्ट 29 मिनट्स हो गया है, 30 मिनट्स का हो जाएगा, बंद कर दूंगा. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. अभी तक मैंने कोई केमिकल रिएक्शन तुमको दिया नहीं था होमवर्क करने के लिए. नाउ दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू इट, लेकिन ये तभी समझ में आएगा व्हेन यू विल राइट ऑल द रिएक्शंस दैट आई हैव टॉट यू. हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स करके देखो, और फिर पहला उसको लिख के देखो 1 टाइम विदाउट सी. इफ़ यू आर एबल टू राइट इट देन एक्सक्यूज मी, then you can go for solving this particular
टेबल इफ़ यू आर अनेबल टू राइट, और उधर ही अटक गया तो फिर वापस से वो सब इक्वेशन फिर से 5 टाइम और 10 टाइम्स लिख के निकालो. सो यू विल अंडरस्टैंड कि मतलब बहुत नॉमिनल मिस्टेक पे अटका था तो 5 टाइम्स लिखो. अगर कोई मेजर मिस्टेक है और समझ में नहीं आया, दिमाग में घुसा ही नहीं है, ओके, तो एक्सेप्ट करो बच्चा, तुम्हारा दिमाग का कैपेसिटी थोड़ा कम है, तो वो केमिकल इक्वेशन 10 टाइम्स लिखो एंड लाउडली बोल के लिखो, जैसा मैंने एक वीडियो में बोला है. और फिर बाद में वापस टेस्ट लो. इफ़ यू राइट इट प्रॉपरली देन ओनली ट्राई टू सॉल्व दिस. ओके, अगर वो याद नहीं हुआ और ये सॉल्व करने का कोशिश करोगे ना, तो जितना वीडियो में देख के सीखा है वो भी दिमाग से निकल जाएगा, कुछ बचेगा नहीं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. दिस इज़ एन ईजी टॉपिक. देन वी हैव इलेक्ट्रोलिसिस. ये टॉपिक भी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ आज ही वीडियो आपको दे सकता हूँ, बट इतना ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा कि जो अभी तक मैंने 2 वीडियो के अंदर केमिकल रिएक्शन सिखाया है ना, ये सब सबलाइम हो जाएगा आपके दिमाग से. इट विल वैनिश, ओके, एंड यू विल बिकम टोटली ब्लैंक एज अ ड्राइंग बुक, न्यूली परचेज ड्राइंग बुक आई मीन टू से, पूरा ब्लैंक हो जाएगा. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस थिंग. ये हम लोग कल करते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और इलेक्ट्रोलिसिस एक्सेट्रा. ये 2 ही टॉपिक हमको डिस्कस करने का है. आयोनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, 3 टॉपिक डिस्कस करने का है. दैट इज नथिंग, इट इज सेम एज इलेक्ट्रोलिसिस इटसेल्फ. ओके.